Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now, in this session, we'll be starting with type number 4. Now, type number 4 is based on the concept of probability density function, जिसको short में बोला जाएगा as PDF, and distribution function bracket में D dot F of a continuous random variable. Probability density function, the probability distribution of a continuous random variable is represented by its probability density function. It is represented by the functional notation f of x. Definition: if x is a continuous random variable, then the function f of x is called probability density function of x if it satisfies f of x greater than or equal to 0 for all x which belongs to R, and integration of minus infinity to infinity f of x dx is equal to 1. Now जैसे दो कंडीशंस हमारे पास हुआ करती थी for probability mass function, that is all probabilities lies between 0 and 1, and summation of all probability is equal to 1. वैसे यहां पे PDF के लिए, that is probability density function के लिए, all my functions should be greater than or equal to 0, and जो वहां पे summation हुआ करता था in PMF type, that is discrete type, वो continuous में it will be integration, and in general minus infinity से infinity f of x dx is equal to 1 आ जाएगा. Now function f of x is a non-negative function such that the total area bounded by its graph and x-axis equals to 1. So now ये origin हो गया, this is your x-axis, यहाँ पे ये y-axis पे it is your function f of x, and यहाँ पे the range is a से लेके b. The probability that x assumes a value in the interval a comma b in the round bracket is the area bounded by the graph of f of x comma x-axis and the lines x equal to a and x equal to b, and is given by probability of x which lies between a to b is equal to integration of a to b f of x dx. The graph of the PDF of a random variable x is called the probability curve of x. Distribution function: let x be a continuous random variable with probability density function small f of x. The cumulative distribution function capital F of x is defined for every real number xi by capital F bracket xi bracket close is equal to probability of x is less than or equal to xi bracket close is equal to integration of minus infinity to xi f of x dx. So now ये x dash हो गया, ये y, ये x, this is 0 minus infinity infinity, यानी ये हो गया मेरा xi तक का रीजन. Now remarks, or we can say note. First one is capital F bracket में xi is the area under the curve
y is equal to f of x. To the left of xi, it is shaded region in the diagram. Second, f of x, capital F of x, increases smoothly as x increases. Third, if range of x is bracket में a comma b, round bracket है, then for any values of x smaller than a, capital F of x is equal to 0, and for any value of x greater than or equal to b, capital F of x is equal to 1 आ जाएगा. Fourth one, p of x greater than small x is equal to 1 minus p of x less than or equal to x. That is also equal to 1 minus capital F of x. Fifth one, probability of x lies between a to b is equal to probability of x which lies between a to b, where a के वहां पे equal to है. This is also equal to probability of x which lies between a to b, जहां पे b के वहां पे equal to है. This is also equal to probability of x which lies between a and b, and a के उधर and b के उधर भी equal to है. This is equal to capital F of b minus capital F of a for round bracket a comma b contained in the range of x. So ये जो condition था, that was for cumulative distribution function for a continuous random variable, or we can say for PDF type, that is probability density function. Confuse नहीं होना है between probability distribution and probability density function. Probability distribution मतलब ये हो जाएगा PMF, that is your type number 2. बट जब जैसे PDF या small f of x ये वर्ड आ गया, मतलब समझ जाना है it is continuous random variable, and continuous random variable is your type number 4. Now, in this concept itself, we also have expected value, variance and standard deviation of a continuous random variable. Yes, in the previous sessions, we have studied the definition of expected value, variance and standard deviation for a discrete random variable. मतलब basically अगर हम हमारे type wise जाए, तो it was our type number 3, which was based on what? Discrete variable के लिए expected value, variance and standard deviation. On similar lines, now we will study the same for continuous random variable. Definition: let x be a continuous random variable with PDF f of x. The mean or expectation of x is defined as e of x is equal to integration of minus infinity to infinity x into f of x dx, provided the integral exists. If the PDF of x is defined over an interval square bracket a comma b square bracket close, then e of x is equal to integration of a to b x into f of x dx, comma f of x is not equal to 0. VAR of x, that is variance of x, is equal to e of x square minus e of x the whole square, that is equal to integration of minus infinity to infinity x square into f of x dx minus integration of minus infinity to infinity x into f of x dx the whole square. Standard deviation of x is equal to under root of variance. So all this is nothing but what? The concept which is related to your type number 4. Now, based on this concept, we have
exercise number 8.2. Now इसमें we have different varieties of question, जिसमें first variety of question हो सकता है check whether each of the following is a PDF or not. Second होता है you need to find mean and variance for a continuous random variable, or they'll use the term as mean and variance for a PDF. मतलब आपको समझ जाना है, it is your type number 4. और probability of some region that is x less than कोई वैल्यू दिया रहेगा, बट साथ में दिया रहेगा फॉर अ PDF या फॉर अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. इन शॉर्ट यहाँ पे स्मॉल एफ ऑफ एक्स कंडीशन में रहेगा. स्मॉल एफ ऑफ एक्स आया मतलब इट इज रिलेटेड टू योर टाइप नंबर 4, क्योंकि ओनली इन दैट केस इट इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. सो नाउ एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ओवर हियर इज check whether each of the following is a PDF. First one, f of x is equal to x for x which lies between 0 and 1, 2 minus x for x which lies between 1 to 2, where 2 is included. So यहाँ पे we see small f of x is equal to, यहाँ पे x है and यहाँ पे it is 2 minus x. यहाँ पे है for x which lies between, इधर है 0 and 1, यहाँ पे 1 and 2. यहाँ पे 1 इक्वल टू है, यहाँ पे 1 जो है वो ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है. एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, माय f of x का वैल्यू. Now यहाँ पे we need to understand कि since I need to check for whether the given function is PDF, I need to check for two conditions. The first condition over here is कि मेरे सारे f of x के values जो है वो either greater than या equal to 0 होना चाहिए. सबसे पहले तो ये, तो यहाँ पे I write here f of x जो है is greater than or equal to 0 for x which belongs to, or I can say for all x which belongs to 0, 2. Now see यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला. ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है 0 भी इंक्लूडेड है एंड ये 2 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू है, इसलिए 0, 2 लिखा. सो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सपोज अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा, एंड x का वैल्यू 0.5 है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 0.5 आता है, तो ये भी 0.5 हो जाएगा. एंड अगर x का वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा. सो मेरा x मतलब फंक्शन का वैल्यू 0 या 0 से तो ज्यादा है, ये फर्स्ट वाले कंडीशन के. सेकेंड वाले कंडीशन के लिए इफ माई वैल्यू ऑफ x इज 1, सो 2 minus 1 ये हो जाएगा 1. अच्छा, x का वैल्यू अगर 2 है तो 2 minus 2 ये हो जाएगा 0. एंड अगर x का वैल्यू 1.5 है, जो 1 and 2 के बीच में होता है, तो 2 minus 1.5 तो ये 0.5 होता है. द मीनिंग ऑफ दिस इज ये फंक्शन का वैल्यू भी 0 या 0 से तो ज्यादा ही आ रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे लिखा here f of x is greater than or equal to 0 for all x which belongs to 0, 2 where both is included, that is 0 and 2, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आ गया. Now after this we say also small f of x is a continuous random variable, or I can say it is continuous. So यहाँ पे I'll write over here, now consider integration of, ये 0 to 1 है and फिर 1 to 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 and 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मतलब बोथ आर इंक्लूडेड. इधर आ जाएगा f of x
dx. This is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1. अच्छा, जब 0 to 1 लिया तो उस टाइम पे मेरा f of x का वैल्यू क्या है? x. सो वी राइट यहां पे x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अगर 1 से 2 लिया, सो उस टाइम पे f of x का वैल्यू क्या है? इट इज 2 minus x. सो यहां पे आ जाएगा 2 minus x dx. एंड अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे. वी सी ओवर हियर दिस इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x. अच्छा, इधर x टू द पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है. मतलब ये हो जाएगा मेरा x रेज टू n फंक्शन. एंड x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1. अरे यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा x रेज टू 2 अपॉन n प्लस 1, मतलब 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2. एंड यहां पे लिमिट आ जाएगा एज 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 को भी जाएगा, इंटीग्रेशन x को भी जाएगा. सो वी राइट यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, यहां पे 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 x dx. एंड ये जो पार्ट है वो ब्रैकेट में आ जाएगा. अब यहां पे वी सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट. सो अपर लिमिट इज 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा 0 स्क्वायर अपॉन 2. क्योंकि हमें ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्यों करना है? क्योंकि हमें उसके बीच का एरिया चाहिए या उसके बीच का रीजन का वैल्यू चाहिए, दैट इज 0 से लेके 1. सो ये जो बीच का पार्ट है वो ढूंढना है. मतलब ये हो गया 1 इज योर अपर लिमिट एंड 0 इज योर लोअर लिमिट, ये दोनों का डिफरेंस. इसलिए इधर बीच में माइनस साइन आ गया. ये कंडीशन हो गया. अभी ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ जाएगा क्योंकि खाली कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन. क्योंकि 2 कांस्टेंट था वो बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 dx आ जाएगा. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, अरे x का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब ये हो गया x रेज टू n. तो x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. मतलब ये हो जाएगा x रेज टू 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2. एंड ये भी आ जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, दैट इज 1 से 2, दैट इज लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 2. इसको आगे सॉल्व किया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2 इन 1 ब्रैकेट प्लस ये दूसरे पार्ट के लिए हो जाएगा दिस इज 2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये हो जाएगा x. एंड इधर मेरा लिमिट है 1 से लेके 2 माइनस यहां पे यह आ जाएगा अपर लिमिट. सो यहां पे आई नीड टू राइट इट एज 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 इन 1 ब्रैकेट. एंड यहां पे ये मेन ब्रैकेट आ जाएगा. सी अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट दिस इन राउंड ब्रैकेट, लिख दिया तो भी चल जाएगा. फर्दर 1/2 माइनस 0/2 ये हो जाएगा हाफ प्लस ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट. दिस विल गिव मी द वैल्यू एज 2 माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर 1 अपॉन 2. सो इसको हम लिखेंगे 4/2 माइनस 1/2. सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ प्लस ब्रैकेट 2 into 1 माइनस 4/2 माइनस 1/2, इसको मैं लिख दूंगा 3/2. एंड दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ प्लस ये ब्रैकेट ये हो जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 2. एलसीएम ले लिया, दिस इज हाफ प्लस हाफ एंड दिस इज इक्वल टू क्या आएगा 1. एंड ये किसका वैल्यू 1 है तो मैं लिखूंगा 0 to 2
एफ ऑफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1. नाउ सिंस हियर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 है. सिंस ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, वी से देयरफॉर f of x is a PDF of a random variable x. So with this question is done. We make a note of this. Now we'll start with the second sub question. F of x is equal to 2. For x which lies between 0 and 1. Now again यहाँ पे मेन क्वेश्चन तो सेम ही है कि चेक वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ और नॉट. सो यहाँ पे द फर्स्ट कंडीशन इज कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इफ दिस इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स विच लाइज बिटवीन 0 and 1. सो ये एक्स 0 और 1 के बीच में है तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2 है. अब x का कोई भी वैल्यू रहे उससे ये वाला टर्म चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है. सो ये जो कांस्टेंट है वो तो 2 ही रहने वाला है. सो हियर वी कैन से हियर f of x is greater than 0 for all x which belongs to 0, 1. And now to test the second condition हमें उसका now consider इंटीग्रेशन पार्ट को टेस्ट करना है. दैट इज 0 to 1 f of x dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 आ जाएगा और यहां पे इट इज 2 dx. 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. नाउ ये इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलाज यस इंटीग्रेशन चैप्टर में ऑलरेडी हमने कर दिया रहेगा. सो हियर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 यस उसका आंसर होता है x एंड द लिमिट इज 0 to 1. सो आगे इसको सॉल्व किया वी गेट दिस एज 2 ब्रैकेट में 1 minus 0 दिस इज 2 ब्रैकेट में 1 दिस इज इक्वल टू 2. ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 f of x dx का वैल्यू. कैन आई से दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2. तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंस दिस इज नॉट इक्वल टू 1, सिंस ये वैल्यू 1 नहीं आया, आई विल से देयरफॉर f of x is not a PDF of a random variable x. So this is not a PDF, that is probability density function नहीं है. So with this question is done. We make a note of this.
Now we'll start with the next question. That is second question. The following is the PDF of a RV X. F of x is equal to x by 8 for x which lies from 0 to 4. This is equal to 0. Otherwise, find first probability of x less than 1.5. Second, probability of x which lies from 1 to 2. Third, probability of x greater than 2. So यहाँ पे one thing is clear कि small f of x आ गया एंड साथ में उन लोग ने पीडीएफ ये वर्ड भी यूज कर दिया है, तो ये क्लियर है, इट इज योर टाइप नंबर 4. एंड ये जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड एज x अपॉन 8. बट ये x अपॉन 8 किस वैल्यूज के लिए है? तो उन लोग बोल रहे हैं x विच लाइज फ्रॉम 0 to 4. मतलब अगर x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में है तो ही x अपॉन 8 ये मेरे फंक्शन का वैल्यू है, एंड इट इज इक्वल टू 0 अदरवाइज. मतलब x का वैल्यू 0 to 4 के अलावा कोई भी दूसरा वैल्यू आएगा 0 to 4 को छोड़ के, या 0 to 4 के बीच के वैल्यूज को छोड़ के कोई भी वैल्यू ऑफ x आया, सो इट फंक्शन ऑफ x का वैल्यू रहेगा 0. सो नाउ यहां पे मुझे फर्स्ट कंडीशन पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1.5. नाउ यहां पे हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड फ्रॉम x फ्रॉम 0 to 4. मतलब यहां पे हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो 0 ये मेरा लोअर लिमिट आएगा, एंड ये फंक्शन 4 तक डिफाइन है. बट इन दिस सिचुएशन वी वांट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1.5. मतलब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वही फंक्शन का जिसका x का वैल्यू 1.5 से कम हो. मतलब यहां पे मेरा लोअर लिमिट जो है वो 0 हो जाएगा. सो ये 0 से लेके यहां पे इट इज, सी फंक्शन इज डिफाइंड टिल 4 बट वी वांट x लेस देन 1.5, इसलिए यहां पे अपर लिमिट 1.5 आ गया f of x dx. नाउ ये 0 to 1.5 से ये 0 to 4 के बीच में ही आता है, 0 to 1.5, तो वो फंक्शन का वैल्यू क्या है? इट इज x by 8. सो यहां पे आ जाएगा 0 से लेके 1.5, दिस इज x अपॉन 8 dx. नाउ इसके यहां पे आगे वी कैन से 1 by 8 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx आ जाएगा फ्रॉम 0 to 1.5, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, यस इधर पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो x रेज टू n कैटेगरी में जाएगा. सो x रेज टू n हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2, एंड यहां पे इट इज 0 to 1.5. सो ये हो जाएगा 1 by 8, ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 1 by 8 in the bracket it is 2.25 upon 2 minus 0 upon 2. So 1 by 8 ये हो जाएगा 1.125, 2.25 डिवाइड बाई 2 किया और ये 0 है. So 1 by 8 into 1.125. So when we divide this 1.125 divided by 8, ये हो जाएगा 0. ये 1 जा 4 जा 0 6 2 जा एंड देन 5 जा. यस, तो इतने वैल्यू से तो ये नंबर 5 या 5 से कम है तो वी कैन से 0.1406. यस, ये हमारा आंसर है.
या 1.125 अपॉन 8 लिखा तो भी चल जाएगा और ये लिख दिया तो भी चल जाएगा. ये हो गया मेरा फर्स्ट सब क्वेश्चन. नाउ वी हैव द सेकंड सब क्वेश्चन ओवर हियर एज प्रोबेबिलिटी वेयर x lies between 1 and 2. This is equal to, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ. नाउ सिंस x lies from 1 to 2. अच्छा, फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है? 0 से लेके 4. सो ये 0 और 4 के बीच में ये 1 and 2 लाई करता है. सो यहां पे मेरा लोअर लिमिट जो है वो 1 हो जाएगा और अपर लिमिट जो है वो 2 हो जाएगा. सी एक्चुअल में माय लिमिट इज फ्रॉम 0 to 4. तो ये 0 to 4 के बीच में ये 1 to 2 आता है. एंड मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी वेयर x लाइज फ्रॉम 1 to 2, इसलिए 1 ये मेरा लोअर लिमिट हो जाएगा. सी यहां पे 0 है बट मुझे 1 से ही चाहिए, इसलिए लोअर लिमिट में 1 आ गया. एंड मुझे फंक्शन 4 तक डिफाइंड है बट मुझे सिर्फ 2 तक चाहिए, इसलिए अपर लिमिट जो है वो 2 आ गया. एंड नाउ वी से यहां पे आ जाएगा f of x dx. सो दिस इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2, इधर f of x के जगह पे यस ये f of x का वैल्यू क्या है? x अपॉन 8. सो यहां पे वी सब्स्टिट्यूट x by 8 dx. सो यहां पे अगेन 1/8 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2, ये हो जाएगा x dx. सो दिस इज 1/8. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x आया, यस अभी काफी सारे सब में हमने देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ x पूछा तो उसका आंसर फिक्स है, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 2. यस आया कैसे? तो वी कंसीडर दिस इज x रेज टू n जैसा. सो x रेज टू n, n में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा x रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1. तो इसलिए x रेज टू 2 अपॉन 2 लिखा. एंड ये हो जाएगा 1 से लेके 2. ये हो जाएगा 1/8. दिस इज 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2. यस ये क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ये हो जाएगा 1/8. 4/2 माइनस 1/2. ये हो जाएगा 1/8. ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई किया, वी गेट दिस एज 3/2. एंड ये हो जाएगा 3/16. एंड इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा 0.16 1 जा 16. सो 140 बचता है. 16 8 जा 128. 120 हो जाएगा 7 जा एंड फिर 5 जा. सो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज फ्रॉम 1 to 2 आ गया. एंड इसके बाद वी हैव द थर्ड सब क्वेश्चन विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2. मतलब यहां पे मुझे ढूंढना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2. अच्छा, ग्रेटर देन 2, ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम 0 to 4. मतलब क्योंकि 0 to 4 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी तो 0 है. एंड नाउ यहां पे x इज ग्रेटर देन 2, मतलब जो x का वैल्यू है वो 2 से तो ज्यादा ही होना चाहिए. इसका मतलब यहां पे मेरा बॉटम लाइन जो है दैट इज लोअर लिमिट जो है वो तो 2 आएगा. एंड मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 4. मतलब एक्चुअल में 0 to 4 था, बट सिंस मुझे x का वैल्यू 2 से ज्यादा ही चाहिए, इसलिए ये 0 के जगह पे यहां पे क्या आ गया? 2. क्योंकि ये फंक्शन 0 से लेके 4 तक डिफाइंड है. हमें यहां पे x ग्रेटर देन 2 चाहिए, मतलब 2 इज योर बॉटम लाइन, दैट इज योर लोअर लिमिट. एंड मैक्सिमम कहां तक? 4 तक, क्योंकि फंक्शन 4 तक डिफाइंड है. एंड वो फंक्शन का वैल्यू क्या है? x/8. सो यहां पे आ जाएगा f of x dx. एंड अब आ जाएगा यहां पे 2 से लेके 4, इधर आ जाएगा x अपॉन 8 dx. यहां पे आ जाएगा 1/8 कांस्टेंट है बाहर, 2 से लेके 4, ये हो जाएगा x dx. ये हो जाएगा 1/8. एंड यहां पे इट इज x का इंटीग्रेशन लिखा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2. एंड ये हो जाएगा 2 से लेके 4 एज माई लोअर एंड अपर लिमिट.
अभी आएगा यहां पे इट इज 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 1/8, इधर ब्रैकेट ये हो जाएगा 16/2 माइनस 4/2. सिंप्लीफाई किया ये 1/8, ये ब्रैकेट आ जाएगा 12/2. सिंप्लीफाई किया ये हो गया 1/8, ये हो गया 6/8 एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.75 ये वैल्यू आ गया. सो नाउ with this question is that we make a note of this, and with this we'll also end the session. Please revise the concept of the session, that will help you to solve the sums in the next session. Thank you.